Hello, everyone. Greetings of the day. I'm Sayukta from Radiance with You YouTube channel, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are diving into a topic that touches everyone under the sun, literally. We embark on a crucial discussion as we raise awareness about fungal infections and the proactive measures that we can take to prevent their spread. Fungal infections might not always be top of the mind when we think about healthcare, but they are certainly not to be underestimated. From athlete's foot to nail fungus to more serious conditions, these infections can wreak havoc on our health and well being if left unchecked. But fear not, we are not just here to talk about the problem, we are here to discuss solutions. From simple prevention techniques to the latest advancements in treatments, we will be diving deep into strategies for combating fungal infections and safeguarding our health, as this is a fungal awareness month. That's why we are thrilled to have Dr. Prachi Prashant Mahajan from Mumbai with us today. Dr. Prachi Mahajan is a dermatologist, dermatosurgeon, and cosmetologist fellowship in aesthetic medicine in Mumbai and is currently the director of Dr. Prachi Mahajan Skin, Hair, and Aesthetic Clinic, Kalyan. She also visits and give consultation to various multi-speciality hospitals of Kalyan, Dombivli, Titwala, and Ulhasnagar. Dr. Prachi Mahajan pursued fellowship in aesthetic medicine from the Disha Skin and Hair Institute, Thane. With an impressive academic background, Dr. Prachi completed MBBS from Dr. Vasantrao Pawar Medical College and Research Center, Nasik. She has done her internship from KEM Hospital, Mumbai. Dr. Prachi Mahajan's professional ethos revolves around providing the same level of care she would want to for her own family. Expert in her field, she has the ability to perform various skin, nail, scalp biopsies, common dermatosurgeries, cosmetic surgeries, procedures, nail surgeries, etc. It's such a pleasure to have you with us, Dr. Prachi Mahajan. Thank you so much, Sayukta madam, for this warm welcome. So, Doctor, as we all know that it's summers in almost all parts of India and it's so hot in most of the parts. And this is the time when we know that, fungal infection also affects us, impacts us, and affect our well-being. So today we are going to talk about fungal infection. तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि फंगल इन्फेक्शन क्या है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। जैसे कि समर्स में ज्यादा स्वेटिंग होती है, सो फंगस बेसिकली लव मॉइस्ट एनवायरनमेंट। दे लव टू ग्रो इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट। जैसे कि गीलापन, कोई भी अगर एक वुड हो या फिर कोई भी गीली चीज हो, जैसे कि हम शेवाड़ा बोलते हैं मराठी, तो उसमें जैसे फंगस ग्रो होता है, तो किसी भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में फंगस ग्रो होगा। जैसे हमारे जो बॉडी के जो पर्टिकुलर एरियाज है, जो कि फोल्ड एरियाज है, बिलो द ब्रेस्ट या फिर अंडर आर्म या फिर इंग्वाइनल रीजन, ग्रोइन, so that areas are more likely to have fungal infection. So this fungus is basically an infection which if treated in time can save life. Yeah. Otherwise, we have multiple years and years people are coming with fungal infection. डॉक्टर साहब 10 साल से है, 5 साल से है, 7 साल से है. So this happens. Yeah. And It's I'm basically sure most of the time when people come to you and say कि हमें 10 साल से 7 साल से फंगल इन्फेक्शन है, तो वो उसमें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट है और ट्रायल भी कर चुके होंगे, बिकॉज हमारी सोसाइटी में डॉक्टर बहुत कॉमन है और मैं चाहूंगी कि हम इस पर भी बात करें कि जब भी किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, इचिंग होती है, तो हम सबसे पहले अपनी किचन की तरफ भागते हैं, उसमें कुछ लगा लिया, किचन गार्डन की तरफ भागते हैं, एलोवेरा लगा लिया, कुछ और लगा लिया, या फिर उससे भी ठीक नहीं होता तो केमिस्ट शॉप चले जाते हैं, वी आस्क द केमिस्ट कि कुछ दे दो, हमें कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी व्हाटएवर इट इज। जब हमें लगता है कि हालात बहुत बिगड़ गए, अब तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं ऑनलाइन, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उन सब इन्फ्लुएंसर्स के पास स्पेशली स्किन से रिलेटेड तो हर मर्ज की दवा रहती है और वो इतना रेमेडीज बता देते हैं कि लोगों को लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। And only when they realize after a long period of time, ये सब hit and trial करने के बाद, that nothing is working and we are still suffering, that's when they go and land up in front of a doctor. So my question to you, doctor, is
going for home remedy, or going by what the influencers are saying, or going to a chemist wale bhaiya and asking ki bhaiya kuch de do they really work or they make it worse? See, they will not work at all. In fact, they will make it worse, as you told. Okay. So इस पे कैसा होता है कि एवरीबडी दैट इज आवर मे बी आवर इंडियन टेंडेंसी और लाइक दैट पीपल का लोगों का ऐसा कहना है कि चलो इन्फेक्शन हो गया, चलो हल्दी लगा लो इसके ऊपर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा लो, या फिर थोड़ा तो ठीक होगा। या फिर जो हमारे घर में जो दादी होती है, जो पुराने जमाने के जो लोग होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम होम रेमेडीज करके हम कर लेंगे ठीक। ओके, बट इट इज नॉट द थिंग। ओके, फंगस में एक्चुअल जिसको फंगस इन्फेक्शन अभी हो गया है, 15 डेज से, 10 दिन से, या फिर 15 दिन से, दैट फंगल इन्फेक्शन विल बी एक्चुअली टिपिकल, इट विल बी फंगल इन्फेक्शन। ओके, जब इस पे कुछ चीज लगाई जाती है होम रेमेडीज से, या फिर कोई केमिस्ट की दुकान से कोई स्टीरॉइड का मेडिकेशन, या फिर स्टीरॉइड का टॉपिकल ऑइंटमेंट, तो ये फंगल इन्फेक्शन मॉडिफाई हो जाती है। उसको हम टीनिया इनकॉग्निटो बोलते हैं, मतलब फंगल इन्फेक्शन विच इज मॉडिफाइड आफ्टर डूइंग सम होम रेमेडीज और आफ्टर डूइंग सम topical steroid application. So that fungal infection are really more worse to treat also. That डॉक्टर को भी काफी टाइम लगता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, मे बी 2 months और 3 months और 4 months और 5 months। एंड पेशेंट साइड ऑल्सो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड बाय द डर्माटोलॉजिस्ट। बिल्कुल, तो ये तो बहुत खतरनाक है एक तरीके से हम कहें तो, इसलिए ये इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए भी करेंगे कि आप होम रेमेडीज या ओवर द काउंटर मेडिकेशन या गोइंग बाय द इन्फ्लुएंसर्स, ये सब करके अपना टाइम, एनर्जी, पैसे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। गो टू द डॉक्टर एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। अगर आपको लग रहा है कुछ इन्फेक्शन है, आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या है, एलर्जी है कि इन्फेक्शन है, प्लीज गो टू द डॉक्टर, दे विल कंसल्ट यू, गो टू द राइट पर्सन, गो टू अ क्वालिफाइड डर्मैट। ये वाकई में बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम ज्यादा पैसे लगाएंगे, ज्यादा वक्त लग जाएगा ट्रीटमेंट में, और वो जो सफरिंग है वो हमें ही झेलनी है। तो इन सबको अगर आपको कम करना है, प्लीज गो टू द डॉक्टर एट द वेरी राइट टाइम, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन पर हम बात कर रहे हैं, तो अगर फंगल इन्फेक्शन किसी को होता है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि हमने ये भी सुना है, और जैसा कि हम देखते भी हैं कि फंगस जो है, काई जो है, वो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट पे भी बहुत जल्दी फैलती है, तो बॉडी पे भी बहुत जल्दी स्प्रेड होती होगी, और हमसे किसी दूसरे को स्प्रेड या होने, कैच करने के चांसेस भी होते होंगे। तो ऐसे में जिसे हुआ है वो किस तरह की सावधानियां बरते? ओके, यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है और यदि कोई दो, हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है लेकिन कोई डॉक्टर के पास जा रहा है या फिर कोई नहीं जा रहा है, सबसे पहले तो इट इज बेटर टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट विल स्टार्ट विथ proper medicines depending upon the area affected, depending upon the how much amount of infection it is. Oral medications will be started, fine, then topical medicines will be given to the patient to apply, and also जो कि soap है, जो एक fungal infection का एक soap है, that also will be recommended by the dermatologist. First thing is that सावधानी फर्क नहीं है तो मेडिसिन सारे फॉलो करने हैं एज एन हाउ गाइडेड बाय द स्किन स्पेशलिस्ट। सेकेंड थिंग इज जो कि प्रिकॉशंस होती है, कुछ कुछ सिर्फ मेडिसिन लेके फंगस इज नॉट गोइंग टू गो। ओके, उसके साथ द बॉडी शुड बी केप्ट ड्राई। फंगस लव्स मॉइस्चर, तो उसको हमें मॉइस्चर नहीं देना है। जैसे कि आफ्टर टेकिंग बाथ, आफ्टर टेकिंग प्रॉपरली द एरिया शुड बी ड्राइड फॉर सम टाइम, मे बी फॉर 5-6 minutes, और जब तक पूरा ड्राई नहीं हो जाता यू शुड नॉट ask the patient to wear the inner wear. Okay, so that is most important, क्योंकि गीलेपन में जो इनर वेयर या फिर क्लोथ पहनेंगे, सो दैट इज मोर मेकिंग द एनवायरनमेंट मॉइस्ट, उसकी वजह से स्केलिंग, रेडनेस, इचिंग, वो सब चीज बाद में बढ़ सकती है। तो फर्स्ट थिंग, वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स आफ्टर द बॉडी इज कम्प्लीटली ड्राइड। सेकेंड थिंग, जो कि फंगल इन्फेक्शन इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ अ स्किन, इट कैन अफेक्ट द legs also. Okay, for that, tight shoes are not recommended.
ओके। सो जो कि जिसका बेस वाइड हो, जिसका अपेक्स वाइड हो, उस टाइप के शूज पहने जाने चाहिए। विंट समर्स में तो स्लीपर्स आर मोस्टली रिकमेंडेड, सैंडल्स आर मोस्टली रिकमेंडेड। ओके। सॉक्स, कॉटन सॉक्स आर टू बी worn than the any other material, fine, if socks and shoes are to be worn। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि वो जो सॉक्स है दैट शुड ऑल्सो बी वॉश्ड। ऐसा नहीं कि 15 15 डेज, 20 20 डेज सेम सॉक्स, 5 5 6 6 डेज सेम सॉक्स द पीपल आर वेयरिंग, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। या सो दैट केयर हैज टू बिल्कुल। बी टेकन। या सो ये हो गया है फंगल इन्फेक्शन। तो ये भी चेक करना है कि बाकी फैमिली मेंबर्स को फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। इफ दे आर हैविंग द फंगल इन्फेक्शन, दे ऑल्सो शुड बी ट्रीटेड फॉर द सेम। अदरवाइज एक का फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है तो दूसरे को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ओके। टॉवल्स, कपड़े जो, स्पेशली द कोम, कोम ऑल्सो शुड बी केप्ट डिफरेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज हैविंग फंगल इन्फेक्शन। ओके। जैसे कि क्लोथ्स है, अगर इनर वेयर जो कि हम है, दैट ऑल्सो शुड बी प्रेस्ड बोथ फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बिफोर वेयरिंग इट। ओके, फाइन, दैट प्रिकॉशन शुड बी टेकन। या बिल्कुल, तो पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत चांसेस है उससे किसी और को फैले। तो आप फैमिली में या ओपन एनवायरनमेंट में भी जब जा रहे हैं, एक तो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दीजिए और जो बातें डॉक्टर ने बताई है उनका ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर, हमेशा हम कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या या करें कि फंगल इन्फेक्शन से हम बच सकें, हो भी? पार्डन मैडम। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इसमें क्या करेक्ट प्रिकॉशनरी करेक्ट। मेजर हम ले यस, सकते हैं कि हमें हो ही ना, प्रिवेंट हम कैसे करें? प्रिवेंशन, यस, एज राइटली टोल्ड बाय यू, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो जैसे कि जिससे फंगल इन्फेक्शन हुआ है उससे एकदम क्लोज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग कि इफ इफ एट ऑल स्वेटिंग की चांसेस ज्यादा है, जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, रनिंग, जंपिंग, जिम एक्टिविटीज, सो वी शुड मेक श्योर दैट इफ वी आर स्वेटिंग अ लॉट, then it is better to take bath 2 times or 3 times in a day. That is important. Okay, personal hygiene is very very important. जैसे कि अभी if we are going on in some farm or something and by any chance if we are barefoot, so that can also, fungus is present in air, fungus is present in soil. Okay, the fungus is that can is there. ओके। तो barefooted चल रहे हैं और हमारे पैर में जख्म है, then fungus can go through that and infection। in that case we should properly take care of our food, whether they uh, are having some injury or not, whether we should take care of that। Okay, washing scalp is very important because scalp also is having fungal, that is tinea capitis which we call। Okay, so that can also predispose to fungal infections। Yeah, so that type of बिल्कुल। hair तो washing should be done thrice a week, that is also recommended। एंड मोस्टली सेम, जैसे कि क्लोथ्स, डेली क्लोथ शुड बी चेंज। ऐसा नहीं कि 2 2 3 3 दिन पीपल आर वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, एंड देन उससे क्या होता है कि स्वेटिंग हो सकता है, स्वेटिंग की वजह से अगेन स्वेटिंग इज गुड फॉर फंगस, तो फंगस बढ़ सकता है। हम्म, राइट। पर्सनल तो हाइजीन प्रिवेंशन हमेशा अच्छा इज होता है। पर्सनल हाइजीन ही वो चीज है जो हमें बचा सकती है, दूसरों को भी बचा सकती है। तो बहुत जरूरी है कि पर्सनल हाइजीन हम मेंटेन करें, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जितना प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंटरी जो मेजर्स डॉक्टर ने बताए हैं उसे फॉलो करेंगे, तो हम बचे रहेंगे। और इनकेस हो जाता है तो फिर हमें एक डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर के पास जाना है। स्किन की हमने बात की डॉक्टर, वेरियस पार्ट्स ऑफ हमारे बॉडी के जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो ज्यादा प्रोन है, उनकी आपने बात की कि कहाँ कहाँ ज्यादा होते हैं, स्पेशली जॉइंट्स जहाँ पे फोल्स हैं। स्किन के अलावा भी आपने बताया स्कैल्प में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, नेल्स में भी हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ी बात आप नेल से जुड़े फंगल इन्फेक्शन और स्कैल्प से जुड़े फंगल इन्फेक्शन पर भी करें। ओके। ओके, सी नेल्स, लाइक नेल्स का जो फंगल इन्फेक्शन है, यदि वो पेशेंट को हो जाता है, सो दैट शुड बी आइडेंटिफाइड लिटिल। जैसे कि ये नेल है, ओके, दिस इज, इसके अंदर है नेल बेड एंड दिस इज द प्लेट। सो जो फंगल इन्फेक्शन होगा वो प्लेट एंड बेड के बीच में होगा।
Okay, so and that will appear little blackish or maybe little dark green color. So when you're thinking that your nails are discoloring, so it is better to consult a dermatologist ताकि फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल है, जिसको हम मोनाइकोमाइकोसिस बोलते हैं, वो है या फिर वो नहीं है, that can be sorted. Because if the entire nail bed, if it is getting if infected with the fungus, then might be the nail can should be removed in that case. Okay, nail avulsion करना पड़ सकता है, और else secondary bacterial infection भी हो सकता है. So that is very important to take care of. कि nail का fungal infection तक very fast. For that, a good expert opinion is required. Right. Nails और ऐसे स्कैल्प nails and also nails should be kept short, especially जिसको fungal infection already है body पे. So they will have a tendency to itch because fungus के जो sign symptoms है, that is itching, the borders are raised, okay, and there is slight scaling over there. तो जैसे कि हम खुजली करते हैं, तो वो जो scales है या फिर वो जो fungal element है, that can be get captured in the nails. Okay, so if the nails are short, तो जो फंगस जो नेल के अंदर जाने की जो कैपेसिटी होगी वो थोड़ी सी कम होगी या फिर नहीं होगी. फाइन. इफ द नेल्स आर लॉन्ग लॉन्ग, सो ज्यादा फंगस उसमें आ सकता है. या सो फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल कैन बी, उससे ज्यादा डैमेज हो सकता है नेल्स को. ओके, या सो दैट शुड बी टेकन, दैट द नेल शुड बी केप्ट स्मॉल और not too and dry and properly trimmed. And doctor, scalp का fungal infection? Yeah, scalp ka fungal infection, that is also a very important thing we should be taken care of, especially a pediatric age group. That can lead to damage to the root of damage to the shaft of the hair, damage to the hair follicle. That can create a permanent, bald patch over there. So that care has to be taken. Scalp should be washed 3 times a week. Okay, if there is a small boil coming on the scalp, that should be really taken care of. The ऐसा अगर symptom आता है, then consultation of a dermatologist is very important. Whether it is just a follicle causing folliculitis, inflammation of follicle causing folliculitis, or it is a fungal infection. So if it is a fungal infection, early detection and proper care is very important. Otherwise, the infection can increase, secondary bacterial infection can come inside. Then again, antifungals के साथ साथ फिर antibacterial medicines also has to be taken. So the number of the medicine का list goes on increasing. So early detection and early treatment is very important per se. अच्छा, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में होम रेमेडीज का बहुत चलन है. एक बहुत चलन में जो चीज रहती है, खास तौर पर घरों में, स्किन पे भी अगर इचिंग हो रही है, नहीं पता कि इन्फेक्शन है कि क्या है, इचिंग हो रही है तो तेल लगा लो, नारियल का तेल लगा लो. इसी तरह से बालों को या स्कैल्प को लेकर भी रहता है कि अच्छा ड्राई स्किन दिख रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, इचिंग हो रही है, तेल लगा लो. फंगल इन्फेक्शन चूंकि है, खास तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तेल लगाना क्या एक गुड प्रैक्टिस है या ये और ज्यादा एग्रीवेट कर सकता है? See, oiling of hair just 30 minutes before your hair wash. Suppose if someone is taking hair wash after 1 hour or 30 minutes, so he can do oiling. उसके बाद 1 hour, within 1 hour if he is washing hair, it is good. Oiling is okay. But अगर रात भर oil रख रहा है, या फिर in that case, oil itself is going to attract more dust, and it is more going to attract the harmful things which is not good. So in that case, डैंड्रफ होगा स्टार्टिंग में, फिर एक पर्टिकुलर एरिया में डैंड्रफ होगा, फिर इचिंग होगी, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, स्वेटिंग हो सकता है, एंड all this may predisposes to fungal infection. So that thing can happen. So oiling is basically not good to keep oil on scalp for longer period of time. Yeah, that is there. There are other things which can be applied on hair, like certain serums or certain other things like sunscreen is there for hair, or serums are there which are good, which can be a substitute for oil. So that can be done. And on body, if oiling is done, if a person who's having fungal infection, recommendation of oil is strictly no.
not to apply oil at all Okay. on a fungal patch. It is going to make it more worse. It is going to aggravate the thing rather than making it relief. Oil लगाने के बाद feel good factor will be there, but that will only be for some time. Otherwise, it is going to make it हाँ, बिकॉज anyhow. एक तरह से हम फंगस को खाना खिला रहे हैं और उसे और हाँ, ज्यादा बढ़ने और पनपने का मौका correct, दे रहे हैं तेल लगाकर. correct, correct. We are making the राइट. environment more good for fungus. राइट. तो इसीलिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इट रियली गोज अ लॉन्ग वे. इसीलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं ताकि पता चले क्या है. तो जब एक पेशेंट आपके पास आता है डॉक्टर, तो फंगल इन्फेक्शन डिटेक्ट करने में, डायग्नोज करने में क्या कोई टेस्ट रिकमेंडेड होते हैं, या जस्ट बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन यू कैन से कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है और ये इतना गहरा जा चुका है या इतना फैल चुका है? हाउ डू यू एक्सेस? Okay. See, first of all, if a patient is walking to me in OPD, first we take a history of patient. History of patient, history लेने के बाद physical examination. After that, we come to know that it is fungal only. If the fungal infection is not having any home remedies applied to it or any steroid application. Okay. When the people give history that कि डॉक्टर हमने ये home remedies किए हैं and this cream we have been applied. So in that case, little, if somehow if it is difficult to diagnose it physically by physical examination, then certain tests are there like KOH mounting we can do, or we just scrape the fungals and then we watch it under microscope after adding the additives, and then we can see the fungal element in this. Okay. Or else if scraping are not available on that time on the patient's skin, then we can also go for a biopsy. But yes, maximum fungal infection can be diagnosed clinically only, unless and until it is added with some other steroid application or some home remedies. उस केस में एंड व्हाट हम आर कर द सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑप्शंस? या, बिल्कुल बिल्कुल. तो ट्रीटमेंट ऑप्शन डॉक्टर, वो. व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? या. Yeah. So treatment option first is we can depending upon the involvement of the particular body area, and that it is treatment is like बहुत बात हो सकती है इस पे. First is foremost कि oral medications है available, then topical medications है. Okay, topical में gels है, then creams है, ointments है, and also powder जो which we say the dusting powder is there. Okay, antifungal powder and antifungal soap are there. Okay, so उसमें भी the categories goes different patients के लिए different रहता है. So there are some people who are diabetic, there are some people who are immunocompromised, there are some who are pregnant. Okay, the one female, some female are lactating. So depending upon that, the best treatment option has to be chosen, and we can give according to the patient. राइट. तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं. लगभग कितना वक्त लगता है ठीक होने में? It depends. Actually, 4 to 6 weeks, the people, maximum people, they start responding. लेकिन इसमें भी कैसा होता है कि कभी कभी किसी किसी का फंगल इन्फेक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है. इट इज लेस. सो व्हेन आई स्टार्ट द ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट नाउ, ऐसा हो सकता है कि 1 week के अंदर पेशेंट हैज सिम्टोमेटिक रिलीफ, जैसे कि इचिंग, रेडनेस, स्किनिंग कम हो सकता है. तो लोग सोचते हैं कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक मेडिसिन, ऑलरेडी आई हैव, मुझे सिम्टम्स में तकलीफ नहीं हो रही, 1 week हो गया, so now I'm feeling better. But in that case, what happens? Suppose he's stopping the medicine after 1 week of starting the treatment. So एक दो वीक उसका ठीक जाता है. That time again the fungus is coming back. So that time it is a resistant type of fungus. In that case, the treatment option, or the treatment option if we give the same पहले का जो है उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंड अगेन डिफिकल्टी. सो इसके जैसे लोग स्टार्ट कंप्लेनिंग कि डॉक्टर 5 साल से फंगस है अभी तक नहीं जा रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है. इफ डॉक्टर इज रिकमेंडिंग अ पर्टिकुलर थिंग फॉर 1 month, पेशेंट शुड टेक इट फॉर 1 month और 15 days, वॉट एवर टोल्ड गाइडेड. अगर यदि पहले बंद किया, then it is going to again multiply, the fungus is again going to multiply. Generally inflammation and scaling and symptomatic relief is there in a week or maybe 2 weeks also. Okay, but the pigmentation is still there. So what we say to the patient, pigmentation होने के बाद, फंगस पूरा क्लियर होने के बाद भी 10 days के लिए we extend the treatment more.
यस, सो दैट इट कैन गो कम्प्लीटली ऑफ। नहीं तो ये आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, दिस साइकिलिंग विल बी कंटिन्यूड। हम्म। और ये हमने भी देखा है, एक बार अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो कई बार वो रिकरेंट मोड पे रहता है और बार बार होता है। और अब समझ में आया जब आपने बताया कि अगर आपने ट्रीटमेंट प्रॉपरली पूरा नहीं किया है, या फिर जो एक हमारी टेंडेंसी होती है कि अच्छा आधा ट्रीटमेंट लिया है, अब असर होने लगा है, ठीक हो गया, बंद कर देते हैं बिना डॉक्टर से फॉलो अप किए हुए, हमने बंद कर दिया, फिर होने लगा, फिर प्रेस्क्रिप्शन है, फिर चले गए, फिर हमने सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दिया। यही वो गड़बड़ है जो हमसे हो जाती है और जिसके बाद चांसेस होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन रिकरेंट मोड पर होने लगे, बार बार होने लगे। तो बहुत जरूरी है ए दैट वी गो टू अ डॉक्टर, consult a qualified dermatologist in case we are having an issue with our skin, कोई भी infection, allergy, please go to the doctor. Second and the most important part is trusting your doctor. Follow the advice and prescription as instructed. That is really important. ये करना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर हमने बात की डॉक्टर, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके भी बहुत सारे सवाल हैं, तो वो भी मैं एक एक करके ले रही हूँ। आशिका सिंह हमारे साथ हैं और उनका सवाल है, कैन फंगल इन्फेक्शन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। It can lead to complications. First, most complication can occur like secondary bacterial infection. जैसे कि patient is itching, itching करके patient will have जख्म over there, जख्म हो सकते हैं उधर, injuries हो सकती है, and after this injury again bacterial infection, then pus discharge, what not things can happen. So it can lead to complications per se. बिल्कुल। तो ये तो रहता ही है, और साथ ही साथ आपसे किसी और को होने के चांसेस भी रहते हैं, किसी Correct. Yes. फैमिली मेंबर्स को भी हो Contagious. सकता है, Yeah. तो इसलिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Yeah. इम्यूनिटी पर, क्योंकि आपने इम्यूनिटी। Especially the senior citizens which are there, they are more predisposed to having the people who are having diabetes. Suppose किसी कारण से, suppose if some patient is having and उनके घर में कोई है जो कि ओल्ड एज है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर डायबिटिक है, शुगर, शुगर also predisposes more to fungal infection. So dietary intake also is very important. हमें पता है कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है, लेकिन फिर भी हम वही। You'll have to unmute. Yes. Yeah, so yes, so that thing should be taken care of. कि family हम्म। members should be treated, and we should take care of them as well. बिल्कुल, चूंकि आपने खाने पीने की बात की, अवधेश तिवारी हमारे साथ हैं और उनका सवाल है, डज ईटिंग हैबिट आल्सो ट्रिगर फंगल इन्फेक्शन? Yes, mostly sweets. Sweets trigger fungus more because हम्म। actually eating sweets little immunocompromised states. जब तक हमारी इम्यूनिटी, जैसे कि हम भी काफी पेशेंट्स देखते हैं फंगस के, या फिर हमारे जैसे लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, या फिर जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो हर एक को फंगल नहीं हो सकता। जिसका इम्यूनिटी लेस हम्म। है उसको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस। ओके, सो यस, इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए जो भी हमें चीज कर सकते हैं, जैसे डाइट में जो हमारे मल्टीविटामिन स्टेटस बेटर होने चाहिए, या फिर शुगर लेवल शुड बी बेटर। डायबिटिक पीपल आर मोर प्रोन फॉर हैविंग फंगल इन्फेक्शन, सो डाइट एडवाइजेस, यस, मीडियम शुगर इंटेक शुड बी देयर। ओके। इम्यूनिटी की आपने बात की, आपने जिक्र किया कि इम्यूनिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और हमने देखा है, मतलब एक को अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है और वो चार लोगों के संपर्क में आता है, तो जरूरी नहीं है कि चारों को ही फंगल इन्फेक्शन वो स्प्रेड कर दे। हो सकता है कुछ की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, या फिर दूसरी बातें भी हो। इम्यूनिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन में खासतौर या इम्यूनिटी प्लेज अ ऑल्सो वेरी ग्रेट रोल इन फंगल इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने बताया, अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो भले फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आई विल नॉट हैव दैट इन्फेक्शन बिकॉज माई इम्यूनिटी इज गुड। कैसा है कि पर? हमें अपना केयर लेना है। वी कैन अवॉइड गोइंग टू प्लेसेस, वी कैन अवॉइड क्विटिंग अवर वर्क। जैसे कि किसी को अगर दादर जाना है तो उसको ट्रेन से जाना है, सो दे हैव टू गो बाय दैट। सो जो सेकंड क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो, इट इज ऑल वन एंड द सेम थिंग इन ट्रेन। सो द क्लोज कॉन्टेक्ट इज देयर, सो इन दैट केस वी शुड मेंटेन आवर इम्यूनिटी वेल, वी शुड कीप आवर, जैसे विटामिन D3 लेवल्स हो गए, या फिर B12 हो गया, दैट शुड बी केप्ट
Good. The immunity plays a very important role in this. Yeah. बिल्कुल, इसीलिए इम्यूनिटी पे भी साइड बाय साइड काम करना, रोज काम करना बहुत जरूरी है कि आपका इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी का लेवल अच्छा हो। और एक और हमारी व्यूअर हमारे साथ है इस वक्त, मीनल। उनका सवाल है, कैन फंगल इन्फेक्शन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू द स्किन और नेल्स? Yes. Sure, they can cause because skin ka fungal infection, if left untreated, pigmentation will be more. This is the skin is having multiple layer. It's not just a single layer. So fungal infection का जो treat after treatment also pigmentation हो जाता है. And if it is left untreated, the pigmentation will be more. So that cosmetic thing will also be there. कि एक तरीके से pigmentation हुआ है. Now what to do of this pigmentation? That thing is there. Second thing, it can lead to complication like as I told, secondary bacterial infection हो सकता है, widespread fungal infection हो सकता है, whole body can be affected. In that case, it is very difficult for the thing to get under control. बिल्कुल। हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर कि किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स हमें बचा सकता है फंगल इन्फेक्शन होने से। और आपने शुरू में भी ये बात की कि क्या पर्सनल हाइजीन किस तरह से हम मेंटेन करें। ओवर द काउंटर जो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर हुआ, एंटी फंगल सोप्स हैं, ये इजीली अवेलेबल है। और ये जो वक्त है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये गर्मी का वक्त है और ऐसे में पसीना बहुत आता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हम लंबे लंबे वक्त तक बहुत टाइट कपड़े पहने ऑफिस में, फॉर्मल्स में रहते हैं। और कई बार एक्यूमुलेशन ऑफ स्वेट, वाटर एक्सेट्रा, और उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या अगर एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम ये ओवर द काउंटर चीजें जो कि एंटी फंगल सोप्स हुए, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर हुआ, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर? यस, हम कर सकते हैं। एंटी फंगल जो सोप है, दैट कैन बी यूज्ड स्पेशली, जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग, जिसको एक्सेसिव स्वेटिंग होने की प्रोपेंसिटी है, उनको 2 times तो या 2 to 3 times तो शावर लेना है, दैट इज रिकमेंडेड. ओके, एंड ऑल्सो antifungal soap can be used. It is not going to harm the body. This antifungal soap should be avoided on the face and the neck area because it tries to make the skin more dry. Okay, so face and neck को छोड़ के neck down till toe, antifungal soap should be used, especially in the groin area and the cold area where the sweat ka propensity is more. So in that area should be concentrated more for antifungal soap. Yes, powder also can be used. That dusting powder also can be used, especially in the cold area. जैसे कि हम पहले डर्मीकूल या फिर इन सब पाउडर्स का हम ऐड देखते हैं टीवी पे, तो दैट मेक्स द फील गुड, ठंडा लगता है। पेशेंट मोस्टली से कि हमको वो पाउडर लगाने के बाद ठंडा लगता है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट पाउडर, yes, antifungal powder, dusting powder can be used. So that can be that is recommended. हमारे एक साथी हैं, एक व्यूअर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, अंकित, और उनका सवाल है, आर देयर एनी नेचुरल रेमेडीज फॉर फंगल इन्फेक्शन? और इसमें एक सवाल अपना मैं ये ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हमने नेचुरल रेमेडीज, होम रेमेडीज पर पहले बात की है, लेकिन मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, उसे नहीं पता अभी कि वो फंगल इन्फेक्शन है कि कोई दूसरी एलर्जी है, इन्फेक्शन है, और डॉक्टर के पास जाने में अभी 1-2 दिन का वक्त लग रहा है किसी वजह से। ऐसे में 1-2 दिन क्योंकि कंटिन्यूअस इचिंग हो रही है, तो वो क्या करे जिससे थोड़ा आराम मिल सके और फिर डॉक्टर के पास जाए? क्या एहतियात वो बरत सकता है? अगर डॉक्टर के पास जाने के लिए 1-2 दिन, एक्चुअली दैट शुड नॉट बी देयर। जैसे कि आपको पैच दिखा, यू आर सपोज टू गो टू द डॉक्टर, दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग। बट किसी रीजन से ट्रैवलिंग है या फिर समथिंग लाइक दैट, या डस्टिंग पाउडर कैन बी द ऑप्शन वन। डस्टिंग पाउडर जैसे रेडीली अवेलेबल है, दैट कैन बी द ऑप्शन, बट यस, नॉट मोर टाइम। नेक्स्ट डे you should go and consult to your doctor because we don't want to make the things more worse. In that case, koi lep वगैरह is not going to help for fungal infection. No aloe vera gel is going to help for fungal infection. No turmeric is going to help. No ginger garlic paste. Nothing is going to help for fungal infection. So yes, powder can be the one thing that 1-2 days you can apply powder. थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट रहेगा, लेकिन that also will be very very temporary. Going to a dermatologist is the only solution for that.
बिल्कुल, एंड तो स्टार्टिंग डॉक्टर के पास तो प्रॉपर। आपको जाना ही है। बहुत हुआ तो एक आध दिन का वक्त अगर लग रहा है किसी वजह से तो ठीक है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर को तो आपको दिखाना ही है, ये वाकई में बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, कई बार होता है ना, जैसा हमने पहले भी बात की, ओवर द काउंटर हमने कोई टॉपिकल एप्लीकेशन ले लिया, हो सकता है वो स्टेरॉइड बेस्ड है, हमें नहीं पता एज अ लेमन। हमें तो केमिस्ट ने दिया, हमने ले लिया, हमने लगाना शुरू किया तो सुपरफिशियली हमें लगा कि अच्छा ये तो ठीक हो रहा है। तो फिर हमें लगता है कि बस हमें इचिंग भी थोड़ी कम हो गई है, अच्छा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, हम लगता है कि हम ठीक हो गए, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जब वापस इचिंग शुरू होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो बहुत ज्यादा फैल चुका है, हमने जिसकी कल्पना ही नहीं की होती है। तो ये जो टॉपिकल एप्लीकेशन, स्पेशली स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स है, लोशंस है, हमें नहीं पता है कि स्टेरॉइड बेस्ड है या नहीं, हमें तो केमिस्ट ने दे दिया था। तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? ये काफी खतरनाक होते हैं एक्चुअली। दे आर अ बिग नो, जैसे कि बेटनीसॉल, कोई भी सॉल या फिर सोन, जो भी है। हम्म। स्टेरॉइड्स आर डबल एज स्वॉर्ड। अगर वो प्रॉपर जगह पे प्रॉपरली यूज किया जा सकता है, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ वंडर। Okay, but if steroids or its combination are going to use for a wrong thing, then it is going to damage the skin. Okay, so इसीलिए chemists या फिर इनके पास जाना recommended नहीं है. They are not doctors. They are just pharmacists. Their job is just to give the medicine. So that thing is should be there, that not to go to the chemist to take medicine is a different thing. But prescription के लिए yes, it is compulsory to go to doctor only for the prescription. और इससे पहले कि हम इस सेशन को समअप करें डॉक्टर, कोई टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? Fungal infection is not a big thing. It is actually a small thing. But if care and if proper medicines, if proper consultation, if proper treatment is taken for that particular fungal infection, then it can go. Otherwise, year and year, it is going to come, it is going to go, it is going to come. So, just to sum up, take care of your body, take care of your skin. If you are going to give priority to your skin, the skin will show wonders. Otherwise, the skin will not show wonders. Yeah. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू डॉक्टर प्राची महाजन, और बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई, आपने अपना वक्त निकाला, ये इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. Thank you. And viewers, thank you for your excellent participation. This was issued in public interest by makers of Lulibor Lotion Advanced Gen Z, division of Hetero Healthcare. And do not forget to subscribe our channel, our YouTube channel, Radiance with You. Stay connected. Thank you. Have a great day ahead. Goodbye.